ٹھیک ہے وہ جا سکتی ہے، مگر میں جب بھی بلواؤں گی وہ مجھ سے ملنے آئے گی۔ سنان یہ ناشتہ لے جاؤ اور اسے کروا دو۔ بالآخر فاطمہ بیگم مان گئیں اور آخر میں سنان کو ناشتے کا بولا۔ نہیں بھائی ہم لیٹ ہو گئے ہیں، آفس جانا ہے۔ فرحان صاحب نے کہا ٹھیک کہہ رہے ہیں بابا، ابھی ارحم کو اسکول بھی چھوڑنا ہے، آپ اس کو ناشتہ کروا دیں، اس طرح وہ آپ سے ناراض بھی نہیں ہوگی، اور ساتھ ہی اس کو خوشخبری کا بھی سنا دیں، اور آپ دونوں آ جائیں، میں پورچ میں ویٹ کر رہا ہوں۔ سنان نے تفصیل سے سب کو مخاطب کیا، ساتھ ہی اسٹینڈ سے گاڑی کی چابی اٹھائی اور ارحم کو اشارہ کیا تو وہ دونوں پورچ میں چلے گئے۔ چلو بیگم میں بھی چلتا ہوں، اپنا اور میری لاڈلی کا خیال رکھنا۔ فرحان صاحب بھی اٹھ کھڑے ہوئے اور چلے گئے تو فاطمہ بیگم نے ناشتے کی ٹرے اٹھائی اور حالے کے کمرے کی طرف گئیں۔ صبح کے 11 بج رہے تھے۔ عائدہ ناشتہ کرنے کے بعد اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ وہ بیڈ پر بیٹھی مختلف سوچوں میں گم تھی جب دروازہ کھلا اور معصومہ اندر داخل ہوئی۔ عائدہ اپنی پیکنگ شروع کر دو، کل صبح پھوپھو کے ساتھ ہم کراچی جائیں گے، معصومہ نے کہا اور مزے سے اس کے بیڈ پر بیٹھ گئی تو عائدہ اسے دیکھنے لگی۔ اف عائدہ ایسے تو مت دیکھا کرو، اٹھو اور پیکنگ کرو پھر کچھ رہ نہ جائے، معصومہ نے اکتا کر کہا۔ کرتی ہوں، عائدہ نے کہا اور سائڈ ٹیبل پر پڑا ناول اٹھا کر پڑھنے لگی۔ عائدہ کی بچی رکھو اسے اور اٹھو۔ معصومہ نے اسے غصے سے اس کے ہاتھ سے بک کھینچ کر سائڈ پر رکھی۔ معصومہ تم نہ بہت بدتمیز ہو۔ عائدہ نے اسے گھورا اور بیڈ سے اتر کر الماری کی طرف بڑھی اور اپنا ضروری سامان نکالنے لگی تو معصومہ اس کے کمرے سے نکل کر اپنے کمرے میں آ گئی تاکہ وہ بھی اپنا ضروری سامان نکال لے۔ اس نے اپنے کمرے میں آ کر دروازہ بند کر دیا اور بیڈ پر بیٹھ کر رونے لگی۔ کچھ دیر بعد دروازہ ناک ہوا مگر وہ خاموش رہی۔ نور دروازہ کھولو، فاطمہ بیگم نے پھر سے دروازہ ناک کرتے ہوئے کہا تو حالے نے اپنے آنسو صاف کیے اور اٹھ کر دروازہ کھولا اور واپس بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی۔ فاطمہ بیگم اندر داخل ہوئیں۔ میری جان ناراض ہے مجھ سے؟ فاطمہ بیگم نے ناشتے کی ڈش سائڈ ٹیبل پر رکھی اور اس کے پاس بیٹھ گئیں مگر حالے خاموش رہی۔ اچھا چلو ناشتہ کرو پھر میرے ساتھ مارکیٹ بھی چلو۔ فاطمہ بیگم نے ڈش اٹھا کر درمیان میں رکھی۔ مارکیٹ کیوں جانا ہے؟ حالے نے ناراضگی سے بغیر دیکھے سوال کیا۔ مجھے کچھ ضروری چیزیں لینی ہیں اور اب تم بھی جاؤ گی تو اس سے پہلے میرے ساتھ شاپنگ کر لو تھوڑی۔ فاطمہ بیگم کے بولنے پر حالے نے ان کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک چمک سی آ گئی تھی۔ میں کہاں جاؤں گی؟ حالے نے کنفرم کرنے کے لیے سوال کیا۔ ہاسٹل جاؤ گی اور کہاں؟ چلو اب باتیں کم کرو اور ناشتہ کرو۔ فاطمہ بیگم نے اسے خوشخبری سنائی اور ساتھ ہی ناشتے کی طرف اشارہ کیا۔ حالے کے ہونٹوں پر گہری مسکراہٹ آ گئی اور وہ جھٹ فاطمہ بیگم کے گلے لگ گئی۔ آپ دنیا کی بیسٹ ماما ہیں، اور کیا سچ میں آپ نے مجھے اجازت دے دی؟ مطلب میں ہاسٹل جا سکتی ہوں؟ حالے نے خوش ہو کر سوال کیا۔ ہاں تم ہاسٹل جا سکتی ہو مگر ایک شرط پر، اور مکھن کم لگاؤ، فاطمہ بیگم نے کہا تو حالے نے سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھا۔ ہفتے میں ایک دن تم میرے پاس رہو گی، فاطمہ بیگم نے اپنی شرط حالے کے سامنے رکھی۔ اوہو امی جان، بس اتنی سی بات؟ ٹھیک ہے مجھے آپ کی شرط منظور ہے، حالے نے مسکرا کر کہا اور ناشتہ کرنے لگی۔ فاطمہ بیگم اس کے پاس ہی بیٹھ کر اس سے باتیں کرتی رہیں۔ حویلی میں رات کا کھانا خوشگوار ماحول میں کھایا گیا۔ سبھی خوش تھے سوائے عائدہ کے۔ اس نے برائے نام ہی کھانا کھایا اور واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ معصومہ بھی اسی کے ساتھ ہی آ گئی۔ عائدہ پھر سے سوچ لو کچھ رہ تو نہیں گیا، معصومہ نے عائدہ کے سامان کو دیکھ کر کہا۔ معصومہ تم نہ جا کر اپنا سامان دیکھو، مجھے تنگ مت کرو، دماغ خراب کر دیا ہے، عائدہ نے کہا اور اپنے بیڈ میں گھس گئی۔ کتنی بدتمیز ہو گئی ہو تم عائدہ، اب مجھ سے بات مت کرنا، معصومہ نے ناراضگی بھرے لہجے میں کہا اور اس کے کمرے سے نکل کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ عائدہ کو احساس ہوا کہ وہ کچھ زیادہ ہی تلخ ہو گئی ہے۔ معصومہ صحیح ہی تو کہہ رہی تھی، ہمیشہ اس سے کچھ نہ کچھ رہ جاتا ہے اور پھر وہ دوسروں کا سر کھاتی ہے۔ وہ بیڈ سے اٹھی اور اپنا سامان چیک کرنے لگی اور اس کے بعد وہ معصومہ کے کمرے کی طرف چلی گئی تاکہ اس کا موڈ ٹھیک کر سکے۔ حالے آج بہت خوش تھی۔ فاطمہ بیگم کے ساتھ شاپنگ کرنے کے بعد جب وہ گھر آئی تو اس نے کال پر ساری تفصیل ماں کو سنائی، جسے سن کر ماں خوش بھی ہوئی۔ اب حالے بس بے صبری سے ہاسٹل جانے کا انتظار کر رہی تھی۔ ہاسٹل میں ماں کے ساتھ اس نے روم شیئر کرنا تھا۔ کل اس نے سنان کے ساتھ ہاسٹل جانا تھا اور پرسوں یونی۔ وہ بہت خوش تھی کیونکہ اس کی ہاسٹل لائف ایکسپیرینس کرنے والی خواہش پوری ہونے والی تھی۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد وہ اپنے روم میں آ گئی۔ روم میں آ کر اس نے اپنی پیکنگ کی اور بعد میں اپنا موبائل لے کر بیٹھ گئی اور اپنا پسندیدہ کام شروع کیا جو کہ ناول پڑھنا تھا۔ رات دیر تک وہ موبائل میں ہی بزی رہی اور اس کے بعد وہ سو گئی۔ صبح کے 11 بجے اس کا موبائل بجنا شروع ہوا پر وہ کان لپیٹ کر سوئی رہی۔ فون وقفے وقفے سے بجتا رہا، شاید دوسری طرف والا بندہ بھی اسی کی طرح ڈھیٹ تھا جو کال پر کال کرتا رہا۔ جب اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا تو اس نے تکیے کے نیچے ہاتھ مارا اور اپنا فون نکالا اور بغیر دیکھے اٹھا لیا۔ نہیں بھائی کیا مسئلہ ہے جو فون پر فون کیے جا رہے ہو؟ اتنی صبح کون فون کرتا ہے؟ بندہ سو رہا ہوتا ہے پر نہیں، آپ آگے سے اپنا ڈھیٹ پن دکھا کر فون کر رہے ہیں اور میری نیند خراب کر دی۔ بولو بھی اب زبان کیا پڑوسیوں کو تحفے میں دے آئے ہو یا بیچ کھائی ہے؟ حالے فون اٹھا کر نان سٹاپ شروع ہو گئی کیونکہ وہ اپنی نیند کے معاملے میں ایسی ہی تھی اور اگر نیند پوری کیے بغیر اٹھتی تو وہ چڑچڑی ہو جاتی تھی۔
हाले की बच्ची, तुम मिलो, मुझे छोड़ना नहीं मैंने तुम्हें। और बहन, कौन सी सुबह 11 बज रहे हैं और जुबान का क्या बोल रही हो? मुझे खुद देखी है अपनी जुबान, जब से फ़ोन उठाया है चपड़ चपड़ शुरू हो गई हो, मुझे बोलने ही नहीं दे रही कुछ। मैं क्या बोलूँ? माँ रविश काफ़ी गुस्से में बोली और ठीक ठाक हाले को सुनाई तो हाले होश में आई। सॉरी यार, मुझे नहीं पता था तुम। हाले बोल रही थी जब माह ने उसकी बात काटी। कोई सॉरी वॉरी नहीं, जल्दी से बेड से निकलो और 12 बजे मुझे हॉस्टल से पिक करने आओ, शॉपिंग पर जाना है। उठो भी, अभी तक बिस्तर में मरी हुई हो। महारविश ने उसे हुक्म दिया और आखिर में उसे डिपटा तो वो जल्दी से बिस्तर से निकली। माह बदतमीज़, अब दफ़ा हो, फ़ोन बंद करोगी तो ही मैं फ़्रेश होने जाऊंगी ना। कब से तो मेरी इज्जत किए जा रही हो, अब बच्ची पर रहम खा। अल्लाह हाफिज़। हाले जो कब से माँ रविश की सुन रही थी तंग होकर बोली और फ़ोन काट दिया। फ़ोन को टेबल पर रखा और उसके बाद खिड़की से पर्दे हटाए, फिर कपड़े लेकर वॉशरूम में घुस गई। 15 मिनट बाद वो फ्रेश सी वॉशरूम से निकली और फिर उसने अपना बेड बनाया और ड्रेसिंग के आगे खड़ी होकर हल्का फुल्का तैयार हुई। अपना हैंड बैग उठाया और कमरे से निकल गई और नीचे की तरफ आई। मामा मामा जल्दी से नाश्ता दें। हाले डाइनिंग टेबल पर आई और फातिमा बेगम को आवाज़ लगाई। क्या हो गया है लड़की, हमेशा हवा के घोड़े पर सवार रहती हो। नाश्ता आ रहा है और 1 मिनट, ये कहाँ जा रही हो? फातिमा बेगम बोलती हुई किचन से निकली और फिर उसकी तैयारी देखकर सवाल किया। माँ, वो माँ की कॉल आई थी, उसे शॉपिंग पर जाना है, उसने 12 बजे बुलाया है, तो मैं जाऊँ क्या? हाले ने उन्हें तफसील बताई और साथ ही जाने की इजाज़त दी। तैयार होने के बाद पूछ रही हो कि जाऊँ? वाह वाह, जाओ, पर आराम से गाड़ी चलाना और फजूल खर्ची करने की ज़रूरत नहीं। अभी कल ही तुम मेरे साथ गई हो, तुम्हारा नाश्ता लेकर आती हूँ। फातिमा बेगम ने उसे तंबीह की और किचन में उसका नाश्ता लेने चली गई। नाश्ता लेकर फातिमा बेगम आई तो उसने नाश्ता किया। मामा बाकी सब कहाँ हैं? हाले ने नाश्ते करते वक्त बाकी सबका पूछा। तुम्हारे पापा तो हमदान भाई की तरफ गए हैं, जबकि अरहम और सनान सो रहे हैं अभी। फातिमा बेगम ने उसे तफसील बताई। हमदान साहब और फरहान साहब बचपन के दोस्त भी थे और बिजनेस पार्टनर भी। अच्छा ठीक है मामा, मैं चलती हूँ। हाले ने नाश्ता ख़त्म किया, फातिमा बेगम के गले लगी और उनका गाल चूमा। गाड़ी की चाबी उठाकर जल्दी से पोर्च में चली गई। बिल्कुल पागल है ये लड़की। फातिमा बेगम उसकी जल्दबाजी पर हमेशा की तरह बुड़बुड़ाहट। खान बाबा गेट खोल दें। हाले ने खान बाबा को बोलकर गाड़ी में बैठी और गाड़ी घर के गेट से निकालकर माह रविश के हॉस्टल के रास्ते पर डाल दी। 25 मिनट बाद उसने हॉस्टल के बाहर गाड़ी खड़ी की और माह को कॉल मिलाई। आयदा मासूमा और हादिया बेगम अगली सुबह 9 बजे हमदान साहब के साथ कराची के लिए निकल आए थे। वैसे तो हादिया बेगम का इरादा कुछ दिन और रुकने का था, मगर आयदा और मासूमा के कराची जाने का सुनकर वो भी साथ आ गई थी। जहरान का आयदा के आने की खबर सुनकर हलक तक कड़वा हुआ था, जबकि आयदा का भी दिल बहुत उदास था। वो आते हुए किसी से भी सही से नहीं मिली थी, फरहीन बेगम से भी नहीं। असल शिकवा तो उसे फरहीन बेगम से ही था, जिन्होंने उसकी माँ होने के बावजूद उसके हक में कुछ भी नहीं कहा था। उसने अपने बाप की कमी शिद्दत से महसूस की थी, वो होते तो उसके साथ ये ज्यादती कभी ना होती। वो खिड़की के पार दौड़ते नज़ारे देखते हुए मुख्तलिफ सोचों में गुम थी। जब गाड़ी अचानक रुक गई तो वो होश में आई। क्या हुआ, गाड़ी क्यों रुक गई? हादिया बेगम ने हमदान साहब से सवाल किया। पता नहीं, मैं देखना हूँ, हमदान साहब ने जवाब दिया और गाड़ी से निकल गए। आयदा ने चेहरा मोड़कर मासूमा को देखा जो सो रही थी। वो फजर के बाद से उठी थी तभी उसकी आंख लग गई थी, जबकि आयदा तो सारी रात नहीं सोई थी। उसके बावजूद भी उसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। चंद लम्हों बाद हमदान साहब ने गाड़ी का बोनट बंद किया और गाड़ी में आकर बैठे। क्या हुआ है अंकल? उनके बैठते ही आयदा ने सवाल किया। पता नहीं बेटा, कुछ मसला हो गया है, कराची से थोड़ा सा ही दूर है, यहाँ तो कोई मैकेनिक भी नहीं मिलेगा। हमदान साहब ने जवाब दिया और कुछ सोचने लगे। अब क्या करेंगे? हादिया बेगम ने कुछ देर बाद कहा। सोच रहा हूँ जहरान को कॉल करूँ। हमदान साहब ने कहा और साथ ही उसे कॉल मिलाने लगे। 2 बार कॉल मिलाने पर जब जहरान ने कॉल पिक ना की तो उन्होंने हमजा को फ़ोन मिलाया, जो दूसरी बेल पर पिक कर लिया गया। अस्सलाम वालेकुम बाबा, कब पहुंच रहे हैं? हमजा ने कॉल अटेंड करते ही सवाल किया। वालेकुम सलाम, गाड़ी ख़राब हो गई है हमजा, हम कराची से थोड़ा ही दूर हैं, लोकेशन सेंड कर रहा हूँ, गाड़ी और कोई अच्छा सा मैकेनिक लेकर पहुँचो। हमदान साहब ने हमजा को तफसील सुनाई। हमजा जो मॉल में सनान का इंतज़ार कर रहा था, वो जल्दी से बाहर की तरफ बढ़ा और सनान को कॉल करने लगा ताकि उसे बता सके वो जा रहा है। मॉल में एंटर होते वो मारविश की टक्कर एक लड़के से हुई, जिससे माह का कीमती मोबाइल ज़मीन बोस हुआ। लड़का काफ़ी उजलत में था, इसलिए माजरत करता आगे बढ़ गया। मारविश को जब टक्कर लगी तो वो सख्त गुस्से में आ गई और जब उसने अपने कीमती फ़ोन को ज़मीन बोस होते देखा तो उसको गहरा सदमा लगा, लेकिन जल्द ही इस सदमे से निकलकर उस लड़के के पीछे गई। अबे रुक तेरी तो, माह बोलती हुई उसके पीछे गई और कंधे से पकड़कर उसका रुख अपनी तरफ किया। उसके इस तरह बोलने पर आसपास के लोग उनको देखने लगे। वो लड़का जो अपनी ही ध्यान में जा रहा था, इस अचानक आने वाली मुसीबत पर बौखला गया। हाले भी अपने ध्यान में आगे जा रही थी, वो भी रुककर पीछे आई और मामला समझने की कोशिश करने लगी। आप मुझसे मुखातिब हैं? लड़के ने काफ़ी मुदबाना अंदाज में माह से पूछा। और नहीं तो यहाँ तुम्हारे बाप, चचा, दादा से मुखातिब हूँ, जो यहाँ सिरे से मौजूद ही नहीं है।
माँ ने भी आगे से काफ़ी भुगो भुगो कर तंज किया और अपनी आसीनों को ऊपर चढ़ाया। महारविश छोड़ो इसे और चलो यहाँ से, हाले ने महारविश के कान में घुसकर कहा और बाजू से पकड़कर खींचा। नूर 2 मिनट चुप करो तुम, माँ ने हाले को आंखें दिखाकर कहा और अपना बाजू खींचा। तमीज़ में रहें और मेरे खानदान वालों पर जाने से तो गुरेज ही करें, वरना मैं आपकी लड़की होने का लिहाज भी नहीं करूँगा। और वैसे भी आप जैसी लड़कियाँ जहर लगती हैं। हमजा ने काफ़ी मुअद्दब अंदाज में माँ को सुनाई और आखिर में उसके हुलिये की तरफ इशारा किया। वाइट शॉर्ट शर्ट, साथ ही ब्लैक जैकेट, उसके नीचे ब्लैक पैंट और सर पर ब्लैक ही कैप थी और छोटे बालों की पोनी टल बनाए हुए थी, जबकि पाँव में ब्लैक स्नीकर्स पहने थे। उसका हुलिया यही था जो हमजा को एक आंख नहीं भाया था। नहीं तो क्या कर लोगे, और अगर इतनी ही जहर लगती हूँ तो पानी में घोल कर पी जाओ। और दूसरी बात, तुम भी मुझे शहद नहीं लग रहे, बड़े आए। माँ ने भी आगे से अपनी ज़ुबान के जौहर दिखाए। सुनती तो वो किसी के बाप की भी नहीं थी। देखिए मोहतरमा, अपनी ज़ुबान के जौहर तो कम ही दिखाइए, वरना मैं शुरू हुआ तो आप फिर अपने बोलने पर पछताएंगी। अभी तो मेरे पास टाइम नहीं, वरना आपको बता देता। हमजा माँ को काफ़ी सुनाकर बाहर की तरफ बढ़ गया, क्योंकि वो लेट हो रहा था, जबकि माँ मुँह खोले उसे देख रही थी। मोहतरमा मुँह बंद कर लें, वरना मक्खी चली जाएगी। हमजा जाते जाते पीछे मुड़ा और मुस्कुराहट दबाकर बोला, तो माँ ने जल्दी से मुँह बंद किया, जबकि उसके इस तरह मुंह बंद करने पर हमजा ने बेसाख्ता कहका लगाया और बिलाकर बाहर चला ही गया। माँ चलो, आज तुम्हारी ना अच्छी खासी हो गई है, हाले ने मुस्कुराहट दबाकर कहा और माँ को बोला, जी क्या है, बिना टिकट के जो शो देखने थे और आप सब वो ख़त्म हो गया। अब अपना अपना रास्ता नापो और छुट्टी करो यहाँ से। माँ जो हाले के बोलने पर होश में आई तो उसने इर्द गिर्द के लोगों को ताली बजाकर मुतवज्जो किया और तंज के तीर चलाकर हाले को बाजू से खींचा और आगे बढ़ गई, पर फर्श से अपना फ़ोन उठाना नहीं भूली। आयदा और मासूमा रात का खाना खाकर अपने कमरे में आ गईं। दोनों एक ही कमरा शेयर कर रही थीं। गाड़ी ख़राब होने के 1.5 घंटे बाद हमजा दूसरी गाड़ी और मैकेनिक लेकर वहां पहुंचा था और आयदा, मासूमा और हादिया बेगम को लेकर कराची आ गया था। जब से आयदा आई थी उसने जहरान को नहीं देखा था, क्योंकि वो अभी तक ऑफिस से नहीं आया था, और वैसे भी आयदा का इस खड़ूस को देखने का कोई मूड नहीं था। आयदा, मैं बहुत खुश हूँ, फाइनली हम सुबह यूनिवर्सिटी जाएंगे। मासूमा ने खुशी के मारे आयदा को बाजू से पकड़कर घुमा डाला। मासूमा पागल हो गई है, छोड़ो मुझे। आयदा ने मासूमा को घूरा और उसे अपने बाजू छुड़वाए। यार मैं बहुत खुश हूँ ना। ओ, मैंने तो सुबह के लिए कपड़े ही नहीं निकाले। मासूमा अपनी खुशी का इजहार कर रही थी जब उसे अचानक कपड़े याद आए। मैं ना अभी कपड़े निकाल कर आती हूँ, मासूमा बोलकर साथ ही ड्रेसिंग रूम में चली गई। आयदा तो बस मासूमा को देख कर ही रह गई, जिसका बस नहीं चल रहा था कि अभी यूनिवर्सिटी चली जाए। आयदा ने फरहीन बेगम को कॉल की और उनके साथ बातें करने लगी। थोड़ी देर बाद उसने फ़ोन बंद कर दिया और मासूमा को देखने लगी। ड्रेसिंग रूम में मासूमा ने अपने और आयदा दोनों के कपड़े निकालने थे और अब उन्हें प्रेस कर रही थी। मासूमा, मेरे कपड़े क्यों प्रेस कर रही हो? हट जाओ, मैं खुद कर लेती हूँ। आयदा ने बोलते साथ ही मासूमा को हटाया और ख़ुद कपड़े प्रेस करने लगी। तो मासूमा कंधे उचकाकर ड्रेसिंग रूम से निकल गई और रूम में जाकर टीवी ऑन कर ली। मासूमा, टीवी बंद करो और सो जाओ, फिर सुबह नहीं उठ सकोगी, और सोने से पहले पानी का जग भर लेना। आयदा ड्रेसिंग रूम से निकलकर मासूमा को बोली। ठीक है आयदा, बस थोड़ी देर में आती हूँ, तुम सो जाओ। मासूमा ने मासूम सी शक्ल बनाकर आयदा से कहा। तो आयदा ने सर हिलाया और बेड पर आकर अपनी साइड पर लेट गई। वो जल्दी नींद की वादियों में खो गई। थोड़ी देर बाद मासूमा भी टीवी बंद करके सो गई। आयदा की आंख रात को प्यास की शिद्दत से खुली तो उसने साइड लैंप ऑन किया और साइड टेबल पर जग देखा, जो कि खाली था। उसने सोई हुई मासूमा को घूरा, जो मज़े से सो रही थी। उसने घड़ी में टाइम देखा तो रात का 1:30 बज रहा था। उसने अपने ऊपर से कंबल हटाया। वो बिस्तर से बाहर निकली और सोफे से अपनी शॉल उठाकर कंधों पर फैलाई और जग लेकर कमरे से बाहर निकल गई। बाहर चारों तरफ अंधेरा था। वो मोबाइल भी साथ नहीं लाई थी, इसलिए हिम्मत करती आगे बढ़ी और अंधेरे में ही किचन में पहुंची। किचन की लाइट ऑन की और पानी भरने लगी। दूसरी तरफ जहरान को काफ़ी की अशद ज़रूरत महसूस हुई थी, क्योंकि वो जब से ऑफिस से आया था काम ही कर रहा था। अब वो कॉफ़ी बनाने की नीयत से कमरे से बाहर निकला और किचन की तरफ आया तो उसे किचन की लाइट ऑन मिली और उसे किसी की मौजूदगी महसूस हुई, तो वो दबे पाँव किचन में आया। आयदा उसकी तरफ कमर किए पानी पी रही थी। जहरान को हैरत हुई कि इस टाइम घर में कोई लड़की, क्योंकि उसके जहन से आयदा और मासूमा के यहाँ आने वाली बात निकल चुकी थी। आयदा जो पानी पीकर मुड़ी थी ताकि टेबल से जग उठा सके, अपने पीछे जहरान को देखकर चीख पड़ती। उससे पहले जहरान जल्दी से आगे बढ़ा और एक हाथ उसकी कमर में डालकर एक हाथ उसके मुंह पर रखकर अपनी तरफ खींचे, जिससे इन दोनों के बीच की 1 इंच का फासला रह गया था। और आयदा की चीख उसके मुंह में ही दब गई और वो आंखें फाड़े जहरान को देखने लगी थी। पागल हो क्या? सारे घर वालों को जगाना है क्या? और रात के इस टाइम यहाँ क्या कर रही हो? जहरान ने आयदा के कान के पास गुर्रा कर कहा और उसकी कमर पर फिर दबाव बढ़ाया तो दर्द की शिद्दत से उसकी आंख से एक आंसू निकलकर बेमोल हुआ। बोलो, अब जवाब क्यों नहीं दे रही? जहरान ने बोला तो आयदा ने आंखों से इशारा उसके हाथ की तरफ किया जो उसके मुंह पर था। तो जहरान ने उसके मुंह से हाथ उठाया, मगर कमर से नहीं हटाया था।
वो पानी पीने आई थी। आयदा ने अटक अटक कर जवाब दिया और जहरान की तरफ देखने से गुरेज किया। तो पानी पी लिया ना, अब जाओ, जहरान ने बोला तो आयदा बेबसी से उसे देखती रह गई। क्या है? जहरान ने फाड़ खाने वाले अंदाज में पूछा। वो आप मुझे छोड़ेंगे तो ही जाऊंगी ना, आयदा बोली तो जहरान को एहसास हुआ कि उसके हाथ आयदा की कमर पर है। जहरान ने उसे छोड़ा तो वो जग लेकर जल्दी से किचन से बाहर निकल गई और कमरे में आकर सुक्का सांस लिया। वो जल्दी से बेड पर लेट गई और साइड लैम्प ऑफ करके सोने की कोशिश करने लगी। पीछे जहरान ने भी कॉफ़ी बनाई और फिर अपने कमरे में चला गया। आज उनका यूनी में पहला दिन था। वो दोनों तैयार होकर यूनी के लिए पैदल ही निकले, क्योंकि यूनी और हॉस्टल में 10 मिनट का फासला था। यूनी में एंटर होते ही हाले इतने लोगों को देख घबरा गई तो माँ रविश ने उसके हाथ पर हाथ रखकर आंखों से तसल्ली दी तो हाले मुस्कुरा दी और दोनों अपने डिपार्टमेंट की तरफ बढ़ी। इन्हीं वो जा रही थी जब किसी लड़की ने उन्हें पुकारा था। सुनो, वो लड़की शायद सीनियर थी। माँ रविश और हाले पीछे मुड़ी तो माँ ने अब्रू उचकाकर बोलने का इशारा किया। उसका एटीट्यूड तो देखो, अभी तो दोनों को मज़ा चिखाती हूँ। वो लड़की तिलमिला गई और गुस्से से दिल ही दिल में हाले और माह से मुखातिब हुई। आप शायद फर्स्ट सेमेस्टर की हैं और गालिबन आज आपका पहला दिन है। वो आपका डिपार्टमेंट कौन सा है? हाले ने सर हिलाया तो वो आगे बोली, जबकि इस सब के दौरान माह रविश उसे मशकूक नज़रों से घूर रही थी। इंग्लिश, नूर ने मुख्तसर जवाब दिया। ओ बीबी, यहाँ क्या इंटरव्यू हो रहा है? हाँ, पूछ कुछ कर रही हूँ। माह रविश की सब्र का पैमाना लबरेज हुआ तो उस लड़की को सुना दी, जो बेचारी गड़बड़ा गई, जबकि हाले ने अपनी मुस्कुराहट दबाई। चली चले, आपको रास्ता बता देती हूँ। उस लड़की ने उनको गलत रास्ता बताया जो कि वॉशरूम की तरफ जाता था। वो लड़की जाने लगी जब हाले ने उसे पुकारा। सुनो बाजी, रास्ता तो सही बताया है, मगर क्या है ना, आपने हमें इंग्लिश डिपार्टमेंट का रास्ता बताना था ना कि वॉशरूम का। आइंदा ना गलत रास्ता बताकर वॉशरूम भिजवाने वाली गलती ना करना, क्योंकि आजकल ना सबके पहले ही अपने डिपार्टमेंट का पता होता है। सो बाय बाजी, आई होप आइंदा कभी ना मिले। अल्लाह हाफिज़। जब हाले ने उस लड़की को रोककर पीछे से ज़ोर ज़ोर से उसकी मीठी मीठी इज्जत की तो वो लड़की शर्मिंदा हो गई और आसपास के लोग जो हाले की ऊंची आवाज़ पर मुतवज्जो हुए थे वो भी हंस दिए। हाले और माँ रविश भी दोनों हाथों पर हाथ मारकर हंस दी, क्योंकि वो कल ही सनान के साथ आकर पूरी यूनी देख गई थी तो उन्हें अपने डिपार्टमेंट और क्लास का पता था। वो दोनों अपनी क्लास में दाखिल हुई तो क्लास में कुछ ही लोग थे जो अपनी बातों में मसरूफ़ थे। वो सिर्फ एक पल के लिए उनकी तरफ मुतवज्जो हुए, फिर अपनी बातों में मसरूफ़ हो गए। वो दोनों भी कंधे उचकाकर आखिरी बेंच पर जाकर बैठ गईं और बातें करने लगीं। कुछ देर बाद सर क्लास में दाखिल हुए तो सब खामोश हो गए और सीधे होकर बैठ गए। सारी क्लासेस में आज इंट्रोडक्शन ही हुआ था, पढ़ाई कल से स्टार्ट होनी थी। वो दोनों सुबह उठी और जल्दी से तैयार होकर नीचे नाश्ते की मेज़ पर चली गईं। वो नीचे आई तो सब नाश्ते की मेज़ पर मौजूद थे। इन दोनों ने सबको ऊंची आवाज़ में सलाम किया। नाश्ते के दौरान आयदा को हर थोड़ी देर बाद जहरान की नज़रें अपने आर पार होती महसूस हो रही थीं। उसने मुश्किल से ही नाश्ता किया। जहरान और हमदान साहब ऑफिस चले गए तो आयदा, मासूमा और हमजा भी यूनी चले गए। रास्ते में उन्होंने आहल को भी पिक करना था। वो चारों यूनी पहुँचे तो मासूमा की नज़र गेट के पास खड़े उस लड़के पर गई जो आयदा के निकाह वाले दिन उसे बार बार घूर रहा था। हाँ भाई, क्या हाल है? सनान ने उनके पास आया और हमजा और आहल से बगलगीर होते हुए सवाल किया। हम ठीक हैं, तू सुना कैसा है? हमजा ने कहा। मैं नज़र नहीं आ रहा तुझे कितना हैंडसम हूँ? हमजा के बोलने पर उन सब की हंसी छूट गई। जनाना हंसी सुनकर सनान ने अपना चेहरा मोड़ा तो उसे वहीं उस दिन वाला चांद सा मासूम चेहरा नज़र आया। वो इनको तो तुम जानते हो पहला दिन है आज इन दोनों का यूनी में। आहल ने सनान के उस तरफ देखने पर कहा तो सनान ने सर हिलाया। महा और हाले का भी आज फर्स्ट डे है, कुछ देर तक आती ही होंगी, उन्हीं का इंतज़ार कर रहा था मैं। सनान ने उसके चेहरे से नज़र हटाकर कहा। क्लास कब है आप दोनों की? सनान ने मासूमा को देखते सवाल किया। 10 बजे। मासूमा सनान इस तरह देखने पर पहले घबरा गई, फिर घड़ी में टाइम देखकर कहा, जहाँ 9 बज रहे थे। क्लास में तो अभी टाइम है, तुम दोनों इनको जल्दी क्यों ले आए? सनान ने हमजा और आहल को देखा। यार, हमने सोचा यूनी और डिपार्टमेंट वगैरह दिखा देंगे। हमजा ने जवाब दिया। चलो फिर इनको यूनी दिखाते हैं। आहल ने कहा तो आयदा और मासूमा इन तीनों के साथ चल दी। कुछ देर बाद सनान को माह का मैसेज मिला कि वो दोनों यूनी पहुंच गई हैं और अपनी क्लास में हैं। उसका मैसेज पढ़कर सनान बेफिक्र हुआ। मासूमा बस इंतज़ार कर रही थी कि ये 1 घंटा बस जल्दी से ख़त्म हो और वो अपनी क्लास में जाए, क्योंकि सनान की नज़रों से वो बहुत घबरा रही थी। 10 बजने में कुछ ही टाइम था जब आयदा और मासूमा अपनी क्लास में चली गईं। आयदा और मासूमा क्लास लेने के बाद कैफेटेरिया आ गईं, क्योंकि उनकी दूसरी क्लास में अभी टाइम था। आहल लोगों की कुछ देर बाद क्लास ख़त्म होनी थी। वो दोनों जब कैफेटेरिया में दाखिल हुईं तो वहाँ पर बहुत से स्टूडेंट्स मौजूद थे। वो दोनों भी एक टेबल पर जाकर बैठ गईं और आहल लोगों का वेट करने लगीं। कुछ देर बाद वो तीनों भी आ गए। सनान ने कुछ याद आने पर यहाँ वहाँ नज़रें दौड़ाईं तो उसे एक कोने में हाले और माह नज़र आई। हम वक्त हाले की नज़र में सनान पर गई तो उसने सनान को हाथ हिलाया।
और सनान ने उसे हाथ के इशारे से अपनी तरफ बुलाया तो वो दोनों इस टेबल से उठकर उसकी तरफ आई थी। कैसी हो तुम दोनों? सनान ने माह और हाले को देखकर कहा। हम बिल्कुल ठीक हैं भाई, आप कैसे हैं? हाले ने मुस्कुराकर जवाब दिया और सनान से फासले पर पड़े टेबल पर बैठे शख्स की नज़र जब हाले पर गई तो वो उसकी मुस्कुराहट में खो गया। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा इनसे मिलो, ये मेरे दोस्त हैं। सनान ने आहल लोगों की तरफ इशारा करते कहा तो आहल ने हाले पर से नज़र हटाई। माह की नज़र जब हमज़ा पर गई तो उसको कल वाला वाक़या याद आया, जबकि मालविश को देखकर हमज़ा हलक तड़ कड़वा हो गया। तुम? माह के मुंह से बेख्तियार निकला। तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? सनान ने उनके इस तरह रिएक्ट करने पर सवाल किया। ये तुम्हारी बहन है? हमज़ा ने सनान के सवाल को नज़रअंदाज करके माह की तरफ इशारा किया। हाँ कुछ ऐसा ही समझ लो, मतलब मेरी खाला की बेटी है। मगर हुआ क्या है? सनान ने नासमझी में जवाब दिया। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। जो भी है भाई, बहुत ही कोई बदतमीज़ लड़की है। हमज़ा ने ऐसे कहा जैसे वहाँ पर मौजूद ही नहीं है और वो खुलकर उसकी बुराई कर सकता है। ओ हेलो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बदतमीज़ बोलने की? माह को पहले तो हमज़ा के इस तरह बेफिक्र होकर बोलने पर सदमा हुआ और फिर बाद में वो गुस्से में उसके करीब। एक मिनट गाइस, हुआ क्या है कि आखिर हमें भी कुछ बताओ। सनान ने माह को बाजू से पकड़कर पीछे किया और फिर दोनों की तरफ सवालिया नज़रों से देखा। मैं बताऊं भाई? हाले ने कहा तो सबने उसकी तरफ सवालिया नज़रों से देखा। वो न कल जब हम मॉल गए थे तब। हाले ने सुकून से चेयर पर बैठकर अलिफ से लेकर ये तक पूरी कहानी सुनाई, जिसे सुनने के बाद उन सब की हंसी छूट गई, जबकि माँ और हमज़ा का मुंह बना हुआ था। ओ माय गॉड, मुझे हमज़ा का तो पता था कि ये पागल है, मगर माँ तुमने भी कम पागलपन नहीं दिखाया। सनान ने हंसते हुए कहा। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे ये किसी पागल खाने से भाग कर आई है। हमज़ा ने बुड़बड़ाहट की, मगर वो इतनी ऊँची थी कि उन सब ने सुनी। सनान इसे कहो अपना मुँह बंद रखे, वरना मैं तोड़कर हाथ में पकड़ा दूंगी। माँ ने सनान को कहा तो वो मुस्कुरा दिया। अरे दफ़ा करो, तुम इसे बोलता रहता है। ये तुम इन दोनों से मिलो। ये है मासूमा आहल की बहन और ये आयदा है हमज़ा की भाभी। सनान ने मासूमा को देखकर एक गहरा मुस्कुराहट उछाली, जिससे मासूमा गड़बड़ा गई। सनान ने तारुफ करवाते हुए आखिरी जुमला शरारत से अदा किया, जिससे आयदा के चेहरे पर सुर्खी फैल गई। हेलो, मैं हाले नूर हूँ और ये माँ रविश है। हाले और माह ने मुस्कुराकर दोनों से हाथ मिलाया। अब मुझे बताओ तुम लोग क्या खाओगे? सनान ने फिर से सवाल किया। माँ और मैंने नाश्ता भी नहीं किया, मुझे बहुत भूख लगी है, आप हमारे लिए कुछ अच्छा सा लाएं। हाले ने कहा तो सनान ने नाश्ता ना करने वाली बात पर उसे घूरा और हमज़ा ने आहल को पाँव मारा, जो मुसलसल हाले को देख रहा था। तुम दोनों क्या खाओगी? आहल ने पहले हमज़ा को फाड़ खाने वाली नज़रों से देखा और फिर मासूमा और आयदा से मुखातिब हुआ। कुछ भी नहीं, हमें भूख नहीं लगी। आयदा ने जवाब दिया तो मासूमा ने भी सर अस्बात में हिलाया। सनान और आहल उठकर ऑर्डर देने चले गए। हमज़ा ने फ़ोन निकाला और यूज़ करने लगा, मगर हर थोड़ी देर बाद सामने बैठी माँ को भी घूर रहा था और माँ उसे दिल ही दिल में गालियों से नवाज रही थी, क्योंकि अभी वो लड़ने के मूड में बिल्कुल नहीं थी। आहल और सनान ऑर्डर देकर वापस आ गए। थोड़ी देर बाद उनका ऑर्डर आ गया तो वो लोग खाना खाने लगे। हाले और माँ, आज मेरे साथ घर चलना, मामा ने बुलाया है। सनान ने बर्गर खाते इन दोनों को मुखातिब किया। जी ठीक है। अच्छा भाई, हम जा रहे हैं, अगली क्लास का टाइम हो गया। हाले ने सनान को बोला और साथ ही माँ को उठने का इशारा किया। ओए मोटी, उठ जाओ वरना सर ने क्लास में आने नहीं देना। हाले ने माह को घूर कर बोला और साथ ही उसे बाजू से पकड़कर उठाया। जो कब से ठूस रही थी उसकी बात सुनकर सब हंस पड़े, जबकि सबसे ऊंचा कहका हमज़ा का था। अपना मुंह बंद करो बंदर, वरना मुंह तोड़ने में एक सेकंड नहीं लगाऊंगी, हल्के में मत लेना। माह रविश ने हमज़ा को फाड़ खाने वाले अंदाज में बोला। साथ ही मुका दिखाया तो हाले ने उसे जल्दी से बाजू से पकड़ा और उसे खींचते हुए कैफेटेरिया से बाहर ले आई। माँ रविश, कहीं तो बस कर जाया करो। हाले तो उसकी हरकतें देख अपना सर पीट लेती थी। वो दोनों क्लास की तरफ जा रही थी जब हाले ने उसको ज़बरदस्त घुरी से नवाज कर बोला। ओ हेलो, तुम्हारी गलती है, मुझे क्यों मोटी बोला? माँ रविश ने हाले को बोला और एक रख कर उसकी कमर पर लगाई थी। हाय अल्लाह, कितनी ज़ोर से मारा है तुमने, अपना ये भारी हाथ मुझ पर ज़रा कम चलाया करो। अब जल्दी दफ़ा हो, क्लास में तुम्हारी बारात नहीं जा रही जो इतना आहिस्ता चल रही हो। हाले ने माँ रविश को ठीक ठाक सुनाई और आखिरी जुमला बोलकर भाग गई तो माँ रविश भी उसके पीछे भागी। वो दोनों गिरती पड़ती क्लास में पहुंची तो क्लास शुरू हुए 5 मिनट हो चुके थे। उन्होंने सर से इजाज़त ली तो सर ने उनका पहले दिन की वजह से क्लास में आने दिया। वो जल्दी से जाकर आखिर में बैठ गईं। शाम के 5 बज रहे थे, सब लॉन में मौजूद थे और मौसम से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे। जब आयदा चाय और दीगर लवाज़मात लाई और टेबल पर रखकर सबको चाय सर्व करने लगी, तभी गेट से ब्लैक लैंड क्रूज़र दाखिल हुई तो बेसाख्ता आयदा की नज़र गेट की तरफ गई। गाड़ी से ज़हरान निकला, जो कि आज जल्दी से ऑफिस आ गया था। ज़हरान ने भी आयदा को देखा तो आयदा नज़रें फेर गई और अपनी चाय लेकर कुर्सी पर बैठ गई। ज़हरान इन सब की तरफ ही चला आया, सबको सलाम करके आयदा के साथ वाली कुर्सी पर बैठ गया। खैरियत ज़हरान, आज ऑफिस से जल्दी आ गए हो? हादिया बेगम ने ज़हरान से पूछा, क्योंकि वो रात को ही ऑफिस से वापस आता था। जी मामा, क्योंकि काम जल्दी ख़त्म हो गया था।
زہران نے بولتے ساتھ ہی عائدہ کے آگے پڑا چائے کا کپ اٹھا لیا، اور عائدہ کا تو منہ کھلا کا کھلا رہ گیا تھا، کیونکہ وہ اپنی چائے کسی کو نہیں دیتی تھی۔ وہ چائے کی دیوانی تھی، اور چائے اٹھائی بھی اس کے شوہر نما دشمن نے۔ عائدہ نے زہران کو زبردست گھری سے نوازا تھا، پر زہران نے اس کی گھریوں کو نظر انداز کیا اور مزے سے چائے پیتا رہا، کیونکہ زہران عائدہ کو تنگ کرنے کا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دے سکتا تھا۔ یہ میری چائے تھی، عائدہ کا جب صبر جواب دے گیا تو اس نے براہ راست زہران سے دانت پیس کر کہا، تو کیا ہوا، شوہر بھی تو میں تمہارا ہی ہوں۔ زہران نے دل جلانے والی مسکراہٹ کے ساتھ عائدہ کو کہا، جہاں سب کا کہکا گونجا۔ وہیں عائدہ کے رنگ ڈھنگ دیکھتی رہ گئی۔ کل تک تو وہ اسے اپنی زندگی میں برداشت نہیں کر سکتا تھا، اور اب دیکھو اس کی چائے پی رہا تھا۔ عائدہ اٹھ کر کچن کی طرف بڑھ گئی تاکہ اپنے لیے دوبارہ چائے بنا سکے۔ زہران، یہ کیا تھا؟ اگر تمہیں چائے پینی تھی تو بول دیتے، میں بنوا دیتی۔ اس بیچاری کیوں پی گئے؟ ہادیہ بیگم نے زہران کو کہا، جو چائے پی کر اٹھ کھڑا ہوا تھا اور اندر جانے کے لیے۔ ماما، وہ بیچاری نہیں ہے، اور کیا ہوا اگر میں اس کی چائے پی گیا؟ وہ میری منکوہا ہے، زہران بول کر اندر چلا گیا۔ وہ اپنے کمرے میں آیا اور فریش ہونے چلا گیا۔ فریش ہونے کے بعد وہ واپس نیچے آیا اور لان میں جانے کا ارادہ ترک کرتا کچن میں آ گیا۔ عائدہ اس کی طرف پشت کر کے کھڑی چائے بنا رہی تھی۔ زہران اس کے بالکل پیچھے جا کر کھڑا ہو گیا، اور اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کو محسوس کر کے عائدہ کے چائے بناتے ہاتھ رکے تھے۔ وہ اس شخص کے دیکھنے کے لیے جیسے ہی پلٹی، اس کا سر زہران کے سینے سے لگا اور اس کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکلی تھی، کیونکہ وہ اس لمحے کے لیے بالکل تیار نہ تھی، جبکہ زہران سکون سے کھڑا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا یہی ہوگا۔ عائدہ نے اپنا سر پیچھے کیا اور اپنے دونوں ہاتھ اس کے سینے پر رکھ کر زہران کو پیچھے کیا۔ کیا بدتمیزی ہے یہ؟ عائدہ نے غصے سے مٹھیاں بھینچ کر کہا۔ بدتمیزی کب کی میں نے؟ زہران نے ابرو اچکائی۔ بدتمیزی نہیں تو اور کیا کیا ہے ابھی آپ نے؟ عائدہ کا دل کیا کہ چولہے پر پڑی چائے اس کے اوپر اڈیل دے۔ او، اسے بدتمیزی تھوڑی کہتے ہیں۔ وہ زہران ابھی بول ہی رہا تھا۔ کیا وہ جب دیکھے مجھے تنگ کرتے رہتے ہیں؟ عائدہ زہران کی بات کاٹ کر بولی، منکوہا ہو تم میری، تمہیں تنگ نہ کروں تو اور کس کو کروں؟ کسی اور کو لے کر آؤ تنگ کرنے کے لیے۔ زہران نے سنجیدگی سے کہا، منکوہا یاد کریں میں وہی ہوں جو آپ کو زہر لگتی ہے، جس کا نام سنتے ہی آپ کا موڈ خراب ہو جاتا ہے، جس کے بارے میں آپ کسی سے بات نہیں کرنا چاہتے۔ میں وہی ہوں جس کو دیکھ کر آپ کی آنکھوں میں خون اتر آتا ہے۔ بھول گئے ہیں کیا؟ میں وہی ہوں جو آپ کی ہر غلطی کی ذمہ دار لگتی ہے۔ عائدہ کی آنکھوں سے آنسو نکل کر رخسار پر بہہ رہے تھے۔ اس کی تو سمجھ سے باہر تھا یہ شخص، جو نکاح کے بعد ایسے ریئیکٹ کر رہا تھا جیسے بڑی ہنسی خوشی اس نے عائدہ کو قبول کیا تھا۔ عائدہ نے ایک نظر اس کے پتھر وجود کو دیکھا اور کچن سے باہر چلی گئی، جبکہ زہران کے کانوں میں صرف اس کے الفاظ گونج رہے تھے، عائدہ بیٹا۔ وہ عائدہ کہاں گئی؟ اور چائے تو دیکھو ابل ابل کر گر گئی ہے، اور تم یہاں کیوں کھڑے ہو؟ عائدہ کہاں گئی؟ ہادیہ بیگم کچن میں آئیں تو عائدہ کو وہاں نہ پا کر انہوں نے پہلے چولہا بند کیا اور پھر زہران کو مخاطب کیا۔ پتہ نہیں، میں ابھی کچن میں آیا ہوں، میں نے اسے یہاں پر نہیں دیکھا، زہران نے جواب دیا اور کچن سے باہر نکل گیا، جبکہ ہادیہ بیگم سر نفی میں ہلانے لگیں۔ حالے نور اور ماہ رویش سنان کے ساتھ یونیورسٹی سے سیدھا فرحان ولا آئی تھیں اور ہال میں بیٹھی فاطمہ بیگم سے باتیں کر رہی تھیں، جبکہ سنان انہیں گھر ڈراپ کر کے آفس چلا گیا تھا۔ ماہ بیٹا، ایک بات بتانی تھی تمہیں، فاطمہ بیگم باتوں کے درمیان بولی۔ جی خالہ بتائیں، کیا ہوا؟ ماہ رویش نے فاطمہ بیگم کو سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ وہ بیٹا، تمہارے ابو کی کال آئی تھی، آج وہ تم سے بات، فاطمہ بیگم بول رہی تھی جب ماہ رویش نے بات کاٹی۔ وہ جو بھی بول رہے تھے مجھے کچھ نہیں سننا، اور اپنے اس شخص کی کال اٹھائی کیوں آپ نے؟ ماہ رویش نے غصے میں کہا۔ ماہ رویش بیٹا، وہ تمہارا باپ ہے، وہ تم سے بات کرنا چاہتا ہے، تمہیں اپنے پاس بلانا چاہتا ہے، فاطمہ بیگم نے اس کے ہاتھ پکڑ کر آرام سے کہا۔ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں اور کیا نہیں، اور میں ان کے پاس جاؤں گی، یہ بات تو وہ اپنے دماغ سے نکال لیں تو بہتر ہوگا۔ اور تب ان کی فکر کہاں گئی تھی؟ جب میری ماں کو چھوڑ دیا تھا تب میں 1 سال کی بھی نہ تھی، اور جب بڑی ہو کر بالغ ہو گئی تب ان کو یاد آیا ہے کہ ان کی بولے کہ اپنی بیوی بچوں کے ساتھ وہاں خوش رہیں، اور مجھے اپنے پاس بلانے کا تو سوچے ہی مت، ماں نے غصے سے کہا اور اٹھ کر باہر لان میں آ گئی۔ ماضی سراج صاحب کی زندگی ایک عجیب موڑ پر آ کر کھڑی ہوئی تھی۔ ایک طرف ان کی محبت تھی، جبکہ دوسری طرف ان کے ماں باپ اور جائیداد تھی۔ ان کے ماں باپ سراج صاحب کی شادی ان کی محبت ریحانہ سے کروانے پر کسی صورت نہیں مان رہے تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ سراج صاحب اپنی پھپھو کی بیٹی فرزانہ بیگم سے شادی کریں۔ آخر کار نہ چاہتے ہوئے بھی سراج صاحب کو گھر والوں کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پڑے، کیونکہ فرزانہ بیگم سے شادی نہ کرنے کی صورت میں انہیں خاندان اور جائیداد سے عاق کر دیا جاتا۔ سراج صاحب نے اگر فرزانہ بیگم سے شادی کی تھی تو اس کی وجہ صرف اور صرف جائیداد تھی۔ فرزانہ بیگم کے والدین نے اپنی ساری جائیداد فرزانہ اور ان کی چھوٹی بہن فاطمہ کے نام کر دی تھی۔ جائیداد کی لالچ میں آ کر سراج صاحب نے ان سے شادی کر لی اور الگ گھر لے کر رہنے لگے۔ شادی کی رات وہ سارا رات گھر نہ آئے۔ وہ رات فرزانہ بیگم نے انتظار کرتے ہوئے گزار دی تھی، اور ان کو اپنی قسمت پر رونا آ رہا تھا۔ شادی کے 3 سال بعد انہیں خوشخبری ملی کہ وہ ماں باپ بننے والے ہیں۔ سراج صاحب کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔
وہ بہت خوش تھے اور فرزانہ بیگم کا بہت خیال رکھتے تھے۔ وقت گزرتا گیا اور ایک دن آیا جب سراج صاحب کو خبر ملی کہ جس کو فرزانہ بیگم 3 ماہ بعد جنم دینے والی ہیں وہ بیٹا نہیں بلکہ بیٹی ہے۔ یہ خبر ملتے ہی ان کے سارے ارمانوں پر پانی پھر گیا۔ وہ روز فرزانہ بیگم کو طعنے دیا کرتے تھے اور جائیداد اپنے نام کروانے پر بہت زور دیا کرتے تھے، مگر فرزانہ بیگم نے بھی خود سے وعدہ کر لیا تھا کہ وہ اپنی ساری جائیداد اپنی بیٹی کے نام کریں گی۔ اگر وہ سراج صاحب کی نام کرتیں تو ان کی اولاد کا سارا فیوچر برباد ہو جاتا۔ سراج صاحب رات کو لیٹ گھر آنے لگے، کبھی کبھی تو پوری رات گزر جاتی مگر وہ گھر نہیں آتے تھے۔ پھر کچھ وقت کے بعد انہوں نے چھوٹے سے سرخ و سفید وجود کو جنم دیا اور اس دن بھی انہیں اپنی قسمت پر خوب رونا آیا تھا کہ سراج صاحب اس دن ان کے پاس نہیں تھے۔ سراج صاحب جو کہا کرتے تھے کہ سب سے پہلے بچے کو وہ اٹھائیں گے، وہی ان کے پاس نہ تھے۔ کسی کو بھی اس بات کی خبر نہ تھی کہ وہ کہاں ہیں۔ فرزانہ بیگم جب فاطمہ بیگم کے ساتھ ہسپتال سے گھر آئیں تو سراج صاحب گھر پر ہی موجود تھے۔ انہیں سکون سے سوتا دیکھ کر فرزانہ بیگم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فاطمہ بیگم نے انہیں حوصلہ دیا۔ فرزانہ بیگم نے اپنی بیٹی کا نام ماہ روش رکھا تھا۔ صبح سراج صاحب کی آنکھ کسی بچی کی آواز سے کھلی جو کہ زور و شور سے رو رہی تھی۔ سراج صاحب کے منہ کے زاویے بگڑ گئے اور وہ فریش ہو کر دوسرے کمرے میں آ گئے جہاں پر ماہ روش رہ رہی تھی اور فرزانہ بیگم اس کو چپ کروانے میں ہلکان ہو رہی تھیں۔ فاطمہ بیگم صبح جلدی چلی گئی تھیں کیونکہ سنان چھوٹا تھا۔ بند کرو اس کا اسپیکر، صبح دماغ خراب کر رہی ہے۔ سراج صاحب فرزانہ بیگم کے اوپر دھاڑے تھے تو فرزانہ بیگم سہم گئیں اور ماہ روش کو لے کر ٹہلنے لگیں۔ تھوڑی دیر بعد وہ خاموش ہو گئی اور سو گئی۔ ماہ روش کو بیڈ پر لٹا کر وہ سراج صاحب کے پاس آئی۔ سراج صاحب، آپ اپنی بیٹی کو بھی نہیں اٹھائیں گے؟ فرزانہ بیگم نے آنکھوں میں آنسو لے کر انہیں کہا، نہیں ہے میری بیٹی، پتہ نہیں کس کا گند تم میرے اوپر تھوپ رہی ہو، اور مجھے بیٹا چاہیے تھا، بیٹا، سمجھی؟ سراج صاحب پھر سے دھاڑے تھے۔ اللہ کا واسطہ ہے آپ کو سراج صاحب، میرے کردار پر کیچڑ مت اچھالیں۔ ماہ روش آپ کی ہی بیٹی ہے، اور بیٹی ہو یا بیٹا یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اور نہ ہی بیٹی تو ہوتی بھی اللہ کی رحمت ہے۔ فرزانہ بیگم نے ان کے آگے ہاتھ جوڑے اور روتے ہوئے کہا، جو بھی ہو ویسے بھی میں نے 3 سال پہلے ریحانہ سے شادی کر لی تھی جو کہ میری من چاہی بیوی ہے۔ تم نہیں، اور میرا ویسے ہی بھی 2 سال کا بیٹا ہے، اور اب تم میرے کام کی نہیں ہو، اس لیے میں تمہیں طلاق دینے والا ہوں۔ سراج صاحب کی بات سن کر فرزانہ بیگم صدمے میں چلی گئی تھیں اور آخری بات پر نکل آئی تھیں صدمے سے۔ سراج صاحب پلیز ایسا نہ کریں، میں آپ کے پاؤں پڑتی ہوں، میری بیٹی کو ایک باپ کی ضرورت ہے، پلیز سراج صاحب۔ فرزانہ بیگم کے آنسو لڑیوں کی صورت بہہ رہے تھے۔ وہ بولتی ہوئی ان کے قدموں میں بیٹھ گئیں اور ان کے پاؤں پکڑ لیے۔ ہٹو پاگل عورت، میں سراج احمد تمہیں اپنے پورے ہوش و حواس میں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ سراج صاحب نے فرزانہ بیگم کو لات مار کر اپنے قدموں سے ہٹایا اور دروازے کو لات مار کر کمرے سے نکلتے چلے گئے۔